So today we have to discuss about what the mean absolute deviation is, what is MSD and SD. So I request any one of you to describe any one of these terms. My question is to Zarmeen Siddiqui. Can you describe, Zarmeen, what is MAD? Is Zarmeen there? जी हम्मास अहमद जी हम्मास अहमद Average absolute deviation. who is answering? Zarmeen. Zarmeen, okay. Actually, the mean absolute deviation. Mean absolute deviation. We have first deviation. Deviation is what? Deviation from mean. So deviation from means of what? Of data. So before going to consider the mean absolute deviation, you have to first think upon the deviation D. D is basically the deviation of data about mean. So two things we have. Mathematically, we can write down it as xi in the subscript I, xi minus x bar. What is xi is? Xi is my data. And what is x bar is? X bar is the mean of that data. So that difference is known as D or Di. In the subscript, it is Di, right? In the subscript, it is Di. And we are interested in why we are interested in the absolute deviation. The reason is in absolute deviation, we have to think upon the negative and the positive values of the differences. But in absolute deviation, we have to ignore the negative sign. Why we are going to ignore the negative sign? Can any one of you answer this question? जी सालिहा सनोबर सालिहा सनोबर बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ बार. देखिए बार की वजह नहीं है इसमें बार की वजह इसलिए नहीं है. एक्स बार तो है ये, लेकिन एक्स आई क्या है इसमें? एक्स आई जो है ये डेटा है हमारा. तो रीजन इज, देखिए डेटा भी नेगेटिव हो सकता है, ये बात भी गलत हो जाएगी कि डेटा नेगेटिव है, लेकिन द एब्सोल्यूट डेविएशन की मेन रीजन ये है कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डेविएशंस आर नेगेटिव and the half of the values of the deviations are positive. Whenever we are taking the sum of deviation, it always be zero. So we can say that the sum of deviation is always be zero.
sum of deviation is always be 0. So how can we make the sum of deviation to a number? There are the two ways. One of them is to take absolute deviation. The second thing is taking squares of deviations. Okay, taking the absolute deviations and taking the square of deviations. Whenever we are taking the absolute of deviation, it is basically the modulus value of xi minus x bar. This is modulus value, and this is not a single value. The modulus of xi minus x bar will be as many values as we have in our data. Similarly, whenever we are talking about the squared deviation, so it will be xi minus x bar and the square of that. ये मैंने पावर का साइन बनाया है, जो एरो नजर आ रहा है आपको, दिस इज पावर बेसिकली. So whenever we are taking the square of this, it is basically the negative values becomes positive. So there are the two ways to focus upon these negative numbers. One of them was that we can take the absolute values of the deviation. Other of them is taking the square of deviation. The final step, जो कि इस definition से आपको समझ में आ जाएगा, MAD means what? Mean of absolute deviation. ठीक है? MAD stands for what? Mean of absolute deviations. So mean of absolute deviation can be taken as sum of all deviations divided by the number of observations. So whenever we divide the sum of all observations by the number of observations, we will get the mean absolute deviation. And we can write down this as summation xi. I is basically in subscript minus x bar and absolute value closed divided by n. This stands for MAD. And what is MSD is this is the deviation xi minus x bar. This is totally the deviation. And some of the deviations are positive and some of the deviations are negative. So we have to consider the square of it. Whenever we take the square of it, it is called squared deviation. ये जो S और D है, D इसमें deviation है, S इसमें square है. और फिर जब इसका मीन निकालते हैं किसी भी चीज का, तो हम इसको टोटल करते हैं and divided by n. Total divided by n. This will becomes the mean square deviation, and mean square deviation is known as
variance. It is equal to variance and it is represented by sigma square. So if anyone have any question related with these MAD and MSD, just raise your hand. I will give you a chance to question. जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है MSD और MAD से रिलेटेड तो वो यहाँ अपना रेज हैंड कर दें, मैं क्वेश्चंस का टाइम दे दूँगा. नो क्वेश्चन. Okay, we are move to the numerical example of this. So in the numerical example of this, we have a data set. Suppose xi is equal to 4, 8, 9, 13. This is our data set. Or we can insert a Excel sheet here. MAD stands for mean absolute deviation और MSD stands for mean squared deviation. ठीक है रिदा? अब देखें ये पहले ये डेटा सेट है. अगर हो सकता है मैं इसमें कुछ चेंज कर दूं. मैं एक्सेल फाइल इंसर्ट कर रहा हूँ. न्यू फाइल. ये एक्सेल शीट आ गई मेरी. अब ये डेटा मैं यहाँ डाल रहा हूँ इसमें एक्सेल के अंदर. ठीक है, डेटा क्या है? डेटा ये लिया है मैंने. 4, 8, 9, 13. अभी मैं इसका मीन निकाल के देखता हूँ. अगर मीन होल नंबर्स में नहीं आ रहा होगा तो आई विल चेंज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस डेटा. तो जब मैंने सम निकाला तो 34 आ रहा है. और जब मैं 34 को डिवाइड करूँगा 4 से तो ये 8.5 आ गया. ठीक है, 8.5 से भी कर सकते हैं. तो व्हाट दिस इज बेसिकली द xi, our data set. And what is to be needed? This is the mean. And we need basically deviation d or di, जो भी आप कहना चाहें इसको. तो how d is computed? D is computed by x minus mean. So x is 4 minus mean is 8.5. तो मैं x माइनस एक्स बार जब निकाल रहा हूँ तो ये मैंने माइनस कर दिया. इट इज -4.5. अच्छा, कैन आई कॉपी दिस फार्मूला एंड ड्रैग इट हेयर? इज दिस करेक्ट वे ऑफ वर्किंग इन एक्सेल? जी, डू यू हैव परसेप्शन के इफ आई पुट अ फार्मूला हेयर and drag the formula in the below cells, so is this correct way of copying the content of the formula? Yes. Rohan, can you say what is the correct way? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और इसका आंसर दीजिए. रोहान खान. तो हर सेल पे अलग फार्मूला कैसे लगेगा, समझाइए. देखिए, इसकी असल वजह यह है कि
द रेफरेंसेस जो होते हैं ना, ये सेल रेफरेंसेस दो टाइप के होते हैं। इनमें से एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और दूसरे को हम कहते हैं रिलेटेड और रिलेटिव रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस हैं क्या? रेफरेंसेस ये हैं, जब मैं ये लिख रहा हूँ ना A2 माइनस A7, A2 की वैल्यू कितनी है 2, ये रही 4 है, सॉरी A2 की वैल्यू है 4 और मैंने कहा A7 की वैल्यू कितनी है 8.5, तो ये तो सही आंसर आ गया -4.5। तो ये हो गया 4 माइनस 8.5। अच्छा, यहाँ मुझे क्या चाहिए? यहाँ मुझे चाहिए 8 माइनस 8.5, लेकिन आ क्या रहा है देखिए आप, आ रहा है A3 माइनस 8। A3 में क्या है 8, वो तो सही है। और दूसरी चीज जो आ रही है A8 आ रही है। A7 में मीन था, लेकिन ये किसको माइनस कर रहा है A8 में, तो ये बेसिकली तो ये कॉपी हो गया। आप देखें ये 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। तो इसका मतलब है whatever formula I was applying is not correct now, तो यू हैव टू मॉडिफाई दिस फार्मूला। और वो फार्मूला ये वाला ही अपडेट होगा, पहला वाला। और क्या अपडेट होगा ये? इसमें इसको मैं रिलेटिव बनाऊंगा। रिलेटिव बनाने का तरीका क्या होता है? इसमें एक डॉलर साइन आप यहाँ प्लेस करें, एक डॉलर साइन आप यहाँ प्लेस करें। अब ये मेरा करेक्ट फार्मूला। अब लेकिन पहली वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। पहली वैल्यू ये डॉलर साइन लगाने से पहले भी -4.5 थी और ये डॉलर साइन लगाने के बाद भी -4.5 है। लेकिन इसका इफेक्ट आप नीचे देखिएगा। नीचे अभी वैल्यूज कितनी है 8, 9, 13। अब मैं इस फार्मूले को जब कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे, तो आप देखिए अलग अलग आंसर्स आएंगे। अब इसकी सही वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए क्या आ रही है, जो मैं चाहता हूँ वो आ रही है। मैं चाहता क्या हूँ, इस सेल में मैं चाहता हूँ 8 में से भी 8.5 माइनस हो, यहाँ आंसर आए। फिर मैं चाहता हूँ 9 में से 8.5 माइनस हो, यहाँ आंसर आए। फिर मैं चाहता हूँ 13 में से 8.5 माइनस हो और यहाँ आंसर आए। तो 13 में से जब मैंने 8.5 माइनस किया तो 4.5 आ गया। 9 में से जब मैंने 8.5 माइनस किया तो ये 34 में से मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये तो टोटल है, ये तो इनका टोटल है। 34 इज नॉट द डेटा, 34 इज द टोटल ऑफ द डेटा, इसलिए इस पे नहीं करना हमें ये। ठीक है, 34 इज द टोटल ऑफ दिस डेटा एंड 8.5 इज द मीन ऑफ दिस डेटा। तो अगर मैं यहाँ एक कॉलम इंसर्ट कर दूं तो, और इसको मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूं, ये तो टोटल हो गया और ये क्या हो गया, दिस इज मीन। तो ये मैं अगर इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में यूं मेरे पास ये मीन आते चले आएंगे और इस डायरेक्शन में मेरे पास यहाँ हर कॉलम का टोटल आते चलेगा। अगर मुझे इस कॉलम का टोटल चाहिए, कैन एनी वन ऑफ यू आंसर मी द टोटल ऑफ दिस कॉलम C6? C6 का टोटल क्या होगा? 0 होगा। इसकी वजह है इस डेटा में 0 नहीं होगा। इस डेटा में तो आप देख के भी बता सकते थे। देखिए कैसे बता सकते थे, यह है +4.5, यह है -4.5, द टोटल इज 0। यह है -0.5, यह है +0.5, टोटल इज। इसी वजह से तो बेटा समझा रहे हैं कि ये जो डेविएशंस हैं, ये डेविएशन इटसेल्फ हमें इतना हेल्पफुल नहीं है क्योंकि इनका सम 0 आ रहा है, हमेशा ही 0 आएगा इनका सम। ये टोटल जो है, ये टोटल मैं यहाँ थोड़ा सा हल्का सा ग्रे कर रहा हूँ इसको ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये डाटा नहीं है, ये टोटल है हमारा। ठीक है, ये क्या है, ये टोटल है। और ये हेडिंग्स हैं हमारी, इसको भी अलग कर दें इससे। ये हमारी हेडिंग्स हैं, ये डेटा है असल में हमारा, इसको भी मैं सेंटर किए दे रहा हूँ। तो अब आपने क्या किया, डेटा दिया हुआ था, इसको भी मैं सेंटर किए दे रहा हूँ। डेटा दिया हुआ था, आपने डेटा का मीन निकाल लिया, डेटा का टोटल निकाल लिया, फिर आपने डेविएशंस निकाल लिए। डेविएशंस की करेक्ट फॉर्म क्या थी कि डेविएशन के फार्मूले में जो मीन था, मीन के सामने हमने डॉलर साइन लगाए, डेटा के सामने हमने डॉलर साइन नहीं लगाए। फिर मैंने फार्मूला दिखा दिया। देखें, B2 पे डॉलर साइन नहीं लगाया, लेकिन जो B7 था उस पर डॉलर साइन लगाया। कोई वजह बता सकता है कि B2 पे क्यों नहीं लगाया? वकार अली जी, वकार। हेलो जी सर। आप लोग अटेंटिव नहीं है मुझे लग रहा है। ये सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है।
देखिए आवाज तो मैंने पहले आप लोगों से पूछा है, आवाज सही नहीं आ रही बताएं, तो एक दो लोगों ने बताया, मैंने आवाज बढ़ा ली अपनी। लेकिन मेरा सर क्वेश्चन ये है, इस फार्मूले में B2 पे मैंने यहाँ डॉलर लगा का साइन नहीं लगाया, लेकिन B7 पे मैंने आगे B से भी लगाया पहले डॉलर का साइन, और 7 से भी पहले लगाया। रीजन पूछ रहा था मैं, क्यों? सर क्योंकि हमें जो है ना B7 की वैल्यू को करना था, इस वजह से। क्या करना था? सर ये जो हम डेविएशन निकाल रहे हैं ना, हमें B7 की निकालनी थी, इस वजह से जो हमने B7 को जो है साथ जो है डॉलर की साइन लगाई। देखिए इसकी मेन रीजन ये है, जो अभी इन्होंने माज अली ने आंसर दिया है, ये सही है कि ये जो मीन है ना इस फार्मूले में, जब हम डेविएशन निकालते हैं, जो अभी मैंने पीछे भी दिखाया आपको, तो डेविएशन में जो मीन है ना वो सेम रहता है, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये मीन, जब मैं 4 में से मीन माइनस कर रहा हूँ, फिर मैं 8 में से भी मीन माइनस कर रहा हूँ, फिर मैं 9 में से भी मीन माइनस कर रहा हूँ, फिर मैं 13 में से ही मीन माइनस कर रहा हूँ। तो ये जो 4, 8, 9, 13 है, ये तो डेटा है, ये चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक 4 वैल्यूज हैं, एक एक करके चेंज हो रहा है, लेकिन इन चारों का मीन एक है, कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो डॉलर साइन लगाते हैं हम, ये गलत हो गया फार्मूला। ये डॉलर साइन हम इसलिए लगाते हैं कि फार्मूले में जब मैं कॉपी पेस्ट करूं, जो चीज चेंज नहीं हो उसके ऊपर डॉलर साइन लगा दें। देखें अब ये फार्मूला मैंने इस वक्त जब हाईलाइट किया, तो B2 तो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, और B7 आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, और B7 के आगे पीछे डॉलर नजर आ रहे हैं। जब मैं इसको खींच के फार्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा, तो ये जो 8.5 है ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। हाँ चेंज क्या होगा, ये B2 चेंज हो जाएगा, जब मैं यहां आ जाऊंगा खींच के से लाऊंगा तो ये B3 हो जाएगा। और जब मैं इसको कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेसेस, और ये जो B7 है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। तो ये डॉलर कब लगाते हैं, जब हमें एब्सोल्यूट करना होता है। ये ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा अभी तो हम डेविएशंस निकाल चुके हैं। आप लोग अलर्ट रहा करें, देखें मैं किसी भी वक्त सवाल करूंगा और मेरे पास नोटबुक रखी हुई होती है, जो आंसर दे देता है मैं वो भी नोट कर लेता हूँ, और जो आंसर नहीं देता है मैं वो भी नोट कर लेता हूँ। लेकिन आंसर गलत देना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन आंसर कोई बोल ही नहीं रहा, इसका मतलब तो ये निकलता है कि समवन इज अवे फ्रॉम द मीटिंग, कि वो मीटिंग में बैठा हुआ ही नहीं है। तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ और पता चल रहा है कि आप बैठे हुए नहीं है मीटिंग में, और आप जो है वो अपने किसी और काम के अंदर बिजी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? तो पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हमने डेविएशंस पे काम किया, डेविएशन का सम हमेशा 0 आएगा। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, मीन में ही बताया था कि डेविएशंस का सम हमेशा 0 आता है। इसलिए हम इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, एब्सोल्यूट डेविएशन में। तो ये मैंने देखें एब्सोल्यूट का साइन बनाया, और एब्सोल्यूट का साइन बना के इसके बीच में मैंने DI लिख दिया। और ये जो मैं आई लिखता हूँ ना, ये सबस्क्रिप्ट में होता है, ये मैं एक्सेल में सबस्क्रिप्ट बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको तो ये सबस्क्रिप्ट में होगा बेसिकली। सबस्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखें। सबस्क्रिप्ट हम बनाते हैं, ड्रॉ में जाएं अगर हम, ये सबस्क्रिप्ट है XI, ये आई छोटा सा या नीचे लगाते हैं, माइनस X बार। X बार में हम सबस्क्रिप्ट नहीं लगाते, द रीजन इज X bar is constant while XI is variable। तो वेरिएबल में इंडेक्स लगाई जाती है, I स्टैंड फॉर द इंडेक्स, ये X1, ये X2, ये X3, ये X4, लेकिन मीन में यही मीन है, थ्रू आउट यही मीन है, मीन चेंज नहीं हो रहा है आपका। तो दैट इज बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट। इसको हमने एब्सोल्यूट कर देना है एक्सेल में, इसको हमने रिलेटिव कर देना है। और पहली प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि अगर मैं इसको माइनस करने के बाद इसका टोटल निकाल लूं, तो दिस टोटल इज ऑलवेज भी 0, हमेशा 0 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, डेटा चेंज कर दूं अगर मैं, आप देखिएगा फिर भी ये 0 आएगा। अभी मैं डेटा चेंज करके आपको दिखाता हूँ, तो ये फिर भी 0 आएगा। ये आ गए?
यहाँ 4 था, देखें अब मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं 7 के दे रहा हूँ। जैसे मैं 7 कर रहा हूँ तो ये सब चेंज होंगी ना, यहाँ 4.5 है या 0. ये मीन भी 8.5 है, आप देखिए क्या होगा, ये 37 हो गया। और ये अच्छा, ये मैंने चूंकि फार्मूले की शक्ल में नहीं लिखा था, ये कांस्टेंट की शक्ल में लिखा था, इसको मैं फार्मूला कर देता हूँ, इज इक्वल टू, इसको मिटा रहा हूँ, इसकी जगह ये टोटल कर रहा हूँ और ये 4। अब देखें नया मीन आ गया, ये जैसे मीन चेंज हो गया ये सब चेंज हो गए, ये 2 पॉइंट पहले 4 पॉइंट समथिंग था, अब ये -2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, लेकिन टोटल अब भी 0। और मैं अगर इसको भी चेंज कर दूं, यहाँ 9 था, इसको मैं 15 कर दूं, अब देखिएगा क्या होगा, 15 करूंगा, ये सब वैल्यूज चेंज होंगी लेकिन 0 चेंज नहीं होगा, मीन भी चेंज हो जाएगा, टोटल भी चेंज हो जाएगा, हर डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल अब भी 0 रहेगा। आप देखिए ये मीन अब चेंज हो गया, 10 पॉइंट समथिंग हो गया, डी की वैल्यूज भी तब्दील हो गई, कुछ और हो गई, लेकिन टोटल अब भी रहेगा। तो आप एक प्रॉपर्टी तो याद रखिए कि अगर मैं डेविएशन निकाल लूँ, जिसमें मैंने कहा था डिफरेंस करते हैं मीन और उसका, और फिर मैं डेविएशन का टोटल निकाल लूँ, तो ये टोटल हमेशा 0 आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम डेविएशन का एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट एक्सेल में कैसे करेंगे, वो बता सकता है एक्सेल में एब्सोल्यूट कैसे करूँगा? दिखाने को तो मैंने ये बार्स लगा दिए एब्सोल्यूट के, और एब्सोल्यूट होता क्या है, किसी को समझ में आ रही है एब्सोल्यूट क्या होता है? माय क्वेश्चन इज टू रुबाब ज़हरा। जी रुबाब ज़हरा। नहीं है मौजूद रुबाब ज़हरा, इसका मतलब है मीटिंग में। ठीक है, मैं नाम नोट कर ले रहा हूँ जो लोग मीटिंग में बैठे हुए नहीं हैं। इसके आगे चलते हैं, एक नाम आ रहा है वक़ार अली। जी वक़ार अली। वक़ार अली भी मीटिंग में नहीं बैठे हुए हैं। आयशा सलीम। हेलो सर, मैं बैठा हूँ, असल में वो आवाज़ अनम्यूट हुई तो मैं तो यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ आपको बार बार, आपसे सवाल बाद में करता हूँ, पहले आपको अनम्यूट करता हूँ। सर, यहाँ से हुआ ही नहीं था जी बताइए। अच्छा सर, एब्सोल्यूट 0 का आपका क्वेश्चन था, तो एब्सोल्यूट तो हम इसी को कैसे, जैसे अगर कोई हमें जो एब्सोल्यूट 0 में चाहिए। नहीं तो एब्सोल्यूट होता क्या है, क्वेश्चन तो ये है, एब्सोल्यूट होता क्या है? सर ये डिस्टेंस फ्रॉम द 0 टू द नंबर लाइन। नहीं बेटा, ये गलत जवाब दे रहे हो आप। जी फातिमा शमीम। फातिमा शमीम, सब सो रहे हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं तो नोटिंग बना रहा हूँ भाई, जो लोग भी सो रहे हैं। लेकिन गलत आंसर देना एक अलग चीज़ है, और सही आंसर देना सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन क्यों बेटा, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? सबको आ रही है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही है? निमरा हैदर ने आंसर दिया है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट बेसिकली देखें, हम कहते हैं नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने का नाम एब्सोल्यूट होता है। और ये सही आंसर दिया माहीन ने कि एक्सेल में कैसे करेंगे, एबीएस करेंगे इसको। सही है, एक्सेल में हम इसको करेंगे एबीएस, एब्सोल्यूट। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ मैं, देखिए आप एब्सोल्यूट कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे एबीएस, ये आ गया, मैंने ए लिखा है, एबीएस आ गया। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेल फंक्शन। अब मैंने एबीएस पे डबल क्लिक कर दूं तो ये पूरा हो जाएगा। किसका एबीएस निकालना है मुझे, इस डिफरेंस का। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस पे आया पीछे और इस पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक किया, ये नंबर इसके अंदर चला गया ब्रैकेट के। ये ब्रैकेट क्लोज करूं या बगैर क्लोज किए भी एंटर कर सकता हूं। देखें ये एब्सोल्यूट हो गया। अब आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि एब्सोल्यूट के मीनिंग क्या है। तो ये था -3.75, ये क्या हो गया, +3.75। तो क्या हुआ, फर्क क्या है इनमें, इसमें और इसमें?
सिर्फ नेगेटिव साइन हटा दी, उसने पॉजिटिव कर दी। तो क्या ये ऐसा भी करेगा कि अगर नेगेटिव साइन हटा के इसने पॉजिटिव कर दी, तो क्या ये पॉजिटिव का नंबर का जब मैं एब्सोल्यूट निकालूंगा तो क्या -4.25 आ जाएगा? कोई आंसर देगा मुझे इस चीज का? इखलास नाज जी, इखलास, सवाल क्या है? समझ में आ गया? सवाल रिपीट करिए इखलास। सर आपने पूछा है कि -4.25 जो पॉजिटिव में है उसको हम अगर पुट करेंगे डेविएशन में तो वो नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव? तो सर वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एब्सोल्यूट में जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम पॉजिटिव में लाते हैं इसलिए। ठीक है, बहुत सही जवाब दिया है तुमने। -3.75 का जो एब्सोल्यूट होगा वो +3.75 होगा, और +4.25 का जो एब्सोल्यूट होगा वो +4.25 ही होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए एब्सोल्यूट खुद नहीं निकाल रहा, एब्सोल्यूट मैं एक्सेल से कह रहा हूँ वो निकाले। तो यहाँ मैंने एक फार्मूला लिखा है ABS ऑफ C2, तो ABS ऑफ C2 को मैं नीचे जैसे ही ड्रैग करूंगा तो बाकी नंबर्स का भी एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो आप देखें एब्सोल्यूट में कुछ भी नहीं हुआ, ये 3.7 माइनस में था, यहाँ प्लस में हो गया, ये -2.75 था प्लस हो गया, 4.25 था प्लस हो गया, 2.25 था प्लस हो गया। ये क्या आ गए अब हमारे पास? इनको हम कहेंगे ये डेविएशंस आ गए, और ये क्या आ गए? ये हमारे पास आ गए एब्सोल्यूट डेविएशंस। ठीक है, तो ये अब आपको पॉइंट समझ में आ गया कि डेविएशन क्या होते हैं और एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होते हैं। डेविएशन होता है डिफरेंस, किसका? डेटा का डिफरेंस मीन से। द डिफरेंस ऑफ द डेटा फ्रॉम मीन इज नोन एज डेविएशन। इसके अलावा एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या है कि इफ द डेविएशंस आर नेगेटिव देन मेक देम पॉजिटिव। रीजन क्या है क्यों हम नेगेटिव डिफरेंस को पॉजिटिव बना रहे हैं? इसका आंसर मैं चाहूंगा लाइबा से। जी लाइबा। भाई सर पूछे इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में क्यों बना दे, मुझसे सवाल। जी आंसर दीजिए। यस सर, एक सेकंड बता रही हूँ। बेटा खुद सोच के जवाब दे दीजिए, पूछने की क्या जरूरत है। सर ग्राफ के लिए शायद, या महविश। जी महविश। किससे पूछा था? महविश कौन है इसमें? महविश इज आउट ऑफ द कंट्रोल। जी, तो आप यहाँ टाइप करके आंसर दे दीजिए, माइक नहीं चल रहा तो। देखिए इस तरह से मुझे अंदाजा होता है कि आप लोग कितना एक्टिवली जो है ना वो क्लास में हैं। आप टाइम को ऐसा ना हो देखें, टाइम ज़ाया हो जाता है, ये सब चीज़ें फिर बाद में थोड़ी कोई समझाएगा आपको। तो डेविएशन एब्सोल्यूट करने की रीज़न मैंने ये बताई थी कि ये जो अगर मैं एब्सोल्यूट किए बगैर टोटल निकाल लेता हूँ तो टोटल 0 आता है। तो फिर हमें एक सजेशन ये दी गई, एक स्टैटिस्टिशियन ने ये सजेस्ट किया कि आप बजाय इसके कि जब डेविएशन का मीन निकालेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो आप एब्सोल्यूट डेविएशन का मीन निकाल लें। इससे क्या होगा? अब मैं मीन निकाल रहा हूँ, देखिए मीन कैसे निकालते हैं, किसका मीन निकालना है? पहले तो ये बात, एक्स का नहीं निकालना। अगर एक्स का निकालना होता तो मैं एक्स का टोटल निकालता और उसको एन से डिवाइड कर देता, लेकिन अभी मुझे मीन निकालना है एब्सोल्यूट, यानी इसका मीन निकालना है, इन नंबर्स का मीन निकालना है। इन नंबर्स का मीन आप कैसे निकालेंगे? इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या चीज आ जाएगी? मीन आ जाएगा। लेकिन मीन एक्स का मीन नहीं है, ये मीन है एब्सोल्यूट डेविएशंस का, तो इसलिए इसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब मैं आपके सामने पहले सम निकाल रहा हूँ, सम के लिए तो ये बटन दबा देते हैं आप, फिर सम आ गया।
और सम निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो ये क्या आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो अब आपको सबको समझ में आ गया कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे आता है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एक बहुत सिंपल तरीके से आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा का डेविएशन निकालते हैं और डेविएशन निकालने के बाद उसको एब्सोल्यूट करते हैं, एब्सोल्यूट करने के बाद मीन निकाल लेते हैं। ये एमएडी की वैल्यू आ गई। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि जी एमएडी निकालना है आपको, तो एमएडी कितना आया, एमएडी आया एमएडी का पूरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं सवाल में किसी से पूछूंगा, हालांकि मैं 2 बार जवाब दे चुका हूँ एमएडी का, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो लोगों को याद नहीं होगा। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सम करते हैं डिवाइडेड बाय एन करते हैं। ये क्या है, ये तो मीन है, मीन है। लेकिन मीन इज नॉट द मीन ऑफ एक्स, मीन इज बेसिकली द मीन ऑफ डेविएशन। अगर मैं मीन ऑफ डेविएशन निकाल दूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए यूं लिखूंगा, टोटल ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय एन, दिस इज व्हाट मीन डेविएशन। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये फार्मूला अभी तक मुकम्मल लिखा हुआ है। सैयदा शमीम, शमामा है या शमीम है, क्या नाम है, शमाम जहरा, जी जी शमाम जहरा, ये फार्मूला सही लिखा हुआ है भी गलत है। स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आपको। फॉर्मूला तो सही लिखा हुआ है। इतनी देर से बेटा जो चीज भी समझा रहा हूँ तुम उसी को गलत आंसर दे रही हो उसका। ये गलत गलत फार्मूला लिखा हुआ है। सही फार्मूला क्या होगा इसका, इसका सही फार्मूला ये होगा, यानी मैं यहाँ एब्सोल्यूट बनाऊं ये, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं ना सम ऑफ डी डिवाइड बाय एन, तो 0 है। डी का टोटल कितना है ये देखें, ये डी है, डी का टोटल कितना आ रहा है 0। तो अगर मैं ये देखिए मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट डेविएशंस का टोटल निकालना है। तो जब आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाय 4, और 13 डिवाइड बाय 4 से आंसर कितना आएगा 3.25। तो अब आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, यू कैन कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन by taking the deviation and then absolute deviation, then compute the total of absolute deviation. That total will be divided by number of observations. This is called mean absolute deviation. इसके बाद हमें जो अगली चीज कंप्यूट करनी है, that is called mean squared deviation. mean squared deviation पे हम कैसे आएंगे, एक्सेल में जाएं हम, ये खुला हुआ एक्सेल। Now instead of computing the absolute deviation, we are computing the squared deviation. How the squared deviation is computed? D I square. This is what? This is squared deviation. इसमें करना कुछ भी नहीं है आपने, सिर्फ ये करना है कि ये जो डी आई है, ये रहा डी आई, स्क्वायर ऑफ दैट। स्क्वायर कैसे करते हैं एक्सेल में, ये पावर का साइन लगाते हैं और 2 कर देते हैं, पावर 2, C2 की पावर 2। और इसको जब मैं ड्रैग करता हूं तो ये हर नंबर का स्क्वायर आ गया। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2.25, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4.25, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3.75। अब मैं इसका टोटल निकाल लूं, दैट टोटल इज 44। और अब मैं इसका मीन निकाल लूं, दिस डिवाइडेड बाय 4। ये 11 क्या चीज आई है, दिस 11 इज नोन एज मीन स्क्वायर्ड डेविएशन। तो अब मैं इससे नीचे की स्लाइड के ऊपर ये लिख रहा हूं, देखिए वो है आपका मीन स्क्वायर डेविएशन। फार्मूला क्या बनेगा,
फार्मूला बनेगा समीशन, जी रोहान सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, समीशन डेविएशन का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट कर दें, इसमें ये वाला साइन लगाने के बजाय इसको ब्रैकेट का साइन लगा दें, डेविएशन ये ब्रैकेट है का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और मैं अगर चाहूँ तो इसको यूं भी लिख सकता हूँ, समीशन x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये जो टोटल आया है आपका, ये आया है 44.75, तो 44.75 डिवाइडेड बाय 4, और जब मैं डिवाइड कर दूं इसको तो आंसर इज 11.18, so that is the MSD. So the value of MAD is 3.25 and the value of MSD is 11.18. And MSD, can any one of you tell me the very popular name of MSD? Ushba Hassan, जी सर, can you मीन tell स्क्वायर me? डेविएशन। मीन स्क्वायर डेविएशन तो है, लेकिन इसका एक पॉपुलर नेम भी है मीन स्क्वायर डेविएशन का, वो पॉपुलर नेम क्या है? वेरिएंस। ठीक है माहीन, सही आंसर दिया है, इट इज वेरिएंस। वेरिएंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए वेरिएंस निकाल लीजिए, तो आप वेरिएंस के लिए क्या निकालेंगे? एमएसडी निकालेंगे। ठीक है, एमएसडी कैसे निकालेंगे? डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, जितनी भी स्क्वायर वैल्यूज आएंगी उनका टोटल निकालेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। और इस वक्त कितना आ रहा है? वो आ रहा है 11.18। अच्छा, अब मेरा कुछ और सवाल है। मेरा क्वेश्चन है वकार अली से। जी वकार अली, आर यू रेडी? वकार, आपसे सवाल ये है कि अगर ये डेटा है सपोज प्राइसेस का, और ये प्राइसेस आपको दी गई हैं रुपीस में, ठीक है, यानी पहले आइटम की प्राइस है 4 रुपीज, दूसरे आइटम की प्राइस है 8 रुपीज, थर्ड आइटम की प्राइस है 9 रुपीज, फोर्थ आइटम की प्राइस है 13 रुपीज। तो ये प्राइसेस हैं रुपीज में। तो अब आप बता सकते हैं कि जो ये मीन आया है, ये जो मीन आया है ये है 10.75। ठीक है, इस मीन का यूनिट क्या होगा? इस मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का यूनिट क्या होगा? और इस मीन स्क्वायर डेविएशन का यूनिट क्या होगा? इनके यूनिट बताने हैं आपको। जी सॉरी सर, मुझे अभी ये नहीं आ रही। यूनिट समझ नहीं आ रहे तुम्हें? यूनिट क्या होता है बताए? सर पता था लेकिन अब ये भूल गया हूँ, याद नहीं। बेटा यूनिट ये है, देखो ये लिखा हुआ है, ये मैंने कहा है ना यूनिट। इसका कितना यूनिट है? 8 रुपीज। तो दिमाग पे जोर डालोगे और अटेंटिव बैठोगे तो समझ में आएंगी चीजें। तो ये सारा डेटा रुपीज में है, तो मीन भी रुपीज में आएगा। सही है, इकराम ने सही आंसर दिया है, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का भी सही आंसर दिया है आयशा सलीम ने, और रोहान ने भी सही आंसर दिया है कि मीन रुपीज में आएगा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन रुपीज में आएगा, और मीन स्क्वायर डेविएशन जो है वो रुपीज स्क्वायर में आएगा। तो सब ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिए हैं। तो मैं देखें यहाँ यूनिट्स लिख रहा हूँ। एक्स बार 10 रुपीज, MAD 3.25 रुपीज, ये भी रुपीज में, और ये आएगा रुपीज स्क्वायर। ये रुपीज स्क्वायर क्यों है, इसकी रीजन समझिए। रुपीज स्क्वायर की रीजन ये है क्योंकि ये है मीन स्क्वायर डेविएशन। जब मैं डेविएशन का स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये 14 नहीं है, ये 14 रुपीज नहीं है, ये है 14 रुपीज स्क्वायर। क्योंकि जब मैंने 7 रुपीज में से 10 रुपीज माइनस किए तो ये आ गया, और अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 3.75 का स्क्वायर किया तो 14 में, तो ये बेसिकली रुपीज स्क्वायर में आ गया। तो ये जो टोटल है, ये वाला टोटल
ये भी रुपीज स्क्वायर में है, और ये जो टोटल है, ये जो मीन है जिसको मैं वेरिएंस कह रहा हूँ 11 पॉइंट, ये भी रुपीज स्क्वायर में आएगा। तो वेरिएंस की एक डिफिकल्टी है, और वो डिफिकल्टी क्या है वेरिएंस की, कि जो वेरिएंस है इसका जो यूनिट होता है वो बाकी यूनिट से डिफरेंट हो जाता है, डेटा के यूनिट से डिफरेंट हो जाता है। अगर डेटा का यूनिट है सेंटीमीटर में, तो मीन का यूनिट भी सेंटीमीटर में होगा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का यूनिट भी सेंटीमीटर में होगा, लेकिन मीन स्क्वायर डेविएशन का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है जी, पूछिए। नूब, नूब एक्चुअल नेम है या निकनेम है? जी पूछिए नूब, क्वेश्चन पूछिए। अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि मैंने ये म्यूट अनम्यूट आपके हाथ पे छोड़ा हुआ है। अननेसेसरी अनम्यूट ना कीजिएगा, जिसको आंसर देना हो अपने आप को खुद अनम्यूट करे, या क्वेश्चन पूछना हो तो भी अनम्यूट करके खुद ही म्यूट कर ले अपने आप को। जी कोई सवाल नहीं है? ठीक है, ये नूब को मैं यहाँ से क्लास से निकाल रहा हूँ। अब कोई अगर एक्चुअल नेम है तो मुझे पता चल जाएगा कौन है ये, लेकिन फिलहाल मैं ये इसको यहाँ से क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ नाम आ नहीं रहा है इसके अंदर, एम तक ये आ गया है और ये है ही नहीं नाम इसमें। ट्वेंटी 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्चुअल नेम से आएंगे आप लोग अटेंडेंस हो जाएगी, वरना अटेंडेंस ही नहीं हो पाएगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो रुपीज स्क्वायर हो रहा है, इस रुपीज स्क्वायर को एक्चुअल यूनिट पे कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू टेक द अंडर रूट। आफ्टर टेकिंग द अंडर रूट इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। So what is standard deviation is SD? It is the positive square root of variance. And your variance is 11.18. And when I am taking the under root, so it will becomes how much? ये मैं Excel से पूछ लेता हूँ. Excel can answer me. Square root SQRT, देख लें आप, फंक्शन आ गया खुद ही. SQRT of what? Of 11.18. Enter. It is 3.34. So your standard deviation is 3 point, कितना आया था? 3.34. 3.34. And the unit of standard deviation is rupees. So this is basically the standard deviation. So standard deviation is what? The standard deviation is the square root of variance. जी स्क्वायर रूट में वेरिएंस रखना है, और जब हम स्क्वायर रूट में वेरिएंस रख के और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में थोड़ा सा ही फर्क है. देखिए वेरिएंस क्या है, वो MSD है, और MSD का मैं अगर रूट ले लूं तो वो स्क्वायर खत्म हो जाता है. यानी यहाँ से ये स्क्वायर हटा दूं, ये जो स्क्वायर है, अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो स्क्वायर हटाने के लिए करेंगे, रूट ले लेंगे, इधर भी रूट ले लेंगे, इधर भी. जब मैं जैसे रूट लूंगा तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ SD आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन.
तो अंडरवुड वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन की है या वेरिएंस की है? तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की है, क्योंकि उसका यूनिट बाकियों के यूनिट के साथ कंपैटिबल हो जाता है। ठीक है जी रोहन, स्क्वायर रूट के अंदर आपको वेरिएंस रखना है और वेरिएंस रखने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ रहा है कोई। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये प्रेजेंटेशन पे वापस आ जाते हैं। ये प्रेजेंटेशन हमने काफ़ी हद तक कवर कर ली थी और इस प्रेजेंटेशन में इनिशियली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नज़र आ रहा है पॉपुलेशन का और सैंपल का। ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। Can any one of you describe the difference between the standard deviation of population and standard deviation of sample? जी हरीम फातिमा, what is the difference between the standard deviation of population and standard deviation of sample? हरीम फातिमा अनम्यूट कर दिया है मैंने, बोलिए। जी अटेंटिव ही नहीं है हरीम फातिमा। जी रोहन ने सही आंसर दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम सैंपल से निकालते हैं तो n-1 से डिवाइड करते हैं। देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये रहा कि जब हम इसको सैंपल से निकाल रहे हैं तो हम n-1 से डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम पॉपुलेशन से निकालेंगे तो फिर n से डिवाइड करेंगे। और एक डिफरेंस और है, वो जो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है तो सिग्मा से दिखाएंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का है तो s से दिखाएंगे। तो s में और सिग्मा में क्या फ़र्क है ये समझिए। s में और सिग्मा में क्या फ़र्क है? s भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। s स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का। जी आयशा ईमान, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पैरामीटर। सही कह रही हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एक पैरामीटर है, while the sample standard deviation is statistic। तो शुरू में हमने जो लेक्चर 1 में पढ़ा था, population variance is known as parameter and sample variance is known as statistics। ये n और n-1 के अलावा इनमें कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ फर्क परसेप्शन का है। Whenever we are considering the data as population, it is basically the whole observations from my entire population. When we are considering the data as sample, means is a random sample selected from the whole population। तो सिर्फ परसेप्शन का फर्क है। अगर मैं इसी डेटा को कहूँ ये हमारा पॉपुलेशन का डेटा है तो फिर मैं n से डिवाइड करूंगा, और इसी सैंपल को अगर मैं इसी डेटा को अगर मैं कह दूँ ये सैंपल है तो फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। On the next slide, standard deviation of sample is computed। तो जैसे मैंने देखें एक डेटा लिया था अभी आज आते ही, कुछ नंबर्स ले लिए थे, उन नंबर्स का मैंने फिर डेविएशंस निकाले थे और फिर मैंने उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। तो यही मैं काम इसमें कर रहा हूँ कि हम कैसे करेंगे। अच्छा ये जो फार्मूला लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो मैंने लिखा था।
मैंने क्या लिखा था देखें, मैंने ये लिखा था समीशन xi माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। अगर सैंपल का है तो n-1, पॉपुलेशन का है तो n। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर का तो आ गया, लेकिन ये एस का अंडर रूट लेके आ जाएगा, लेकिन ये है इसकी होल स्क्वायर फॉर्म, ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये कैसे आता है, इसकी डेरिवेशन का आइडिया मैंने लास्ट टाइम दिया था कि यहाँ से यहाँ कैसे आते हैं। यहाँ से यहाँ आप खुद भी आ सकते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको भी आती है। यहाँ से आने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आने के लिए आपको इस a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर जब एक्सपैंड होगा तो वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो उससे फिर ये टर्म आ जाएगी। तो लास्ट टाइम का लेक्चर मुझे याद है कि मैंने ये आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिखाया भी था, और वो शायद मेरे पास उसमें अभी वन नोट पे लिखा हुआ भी हो शायद। अगर वो वन नोट पे लिखा हुआ होता है तो मैं एक शक्ल उसकी दिखा के आपको आगे बढ़ सकता हूँ। ये लिखा हुआ है।